मोदी जी को डर के भागना पड़ेगा यहाँ से। मजदूर की शक्ति ने देखी वे मजदूर और किसान कितना शक्तिवान है। आवेदन पत्र 6 जमा करा रही हूँ, 15 दिन का भीतर मन काम मिल रही हो। अब वो और लाइन ऐसी चीजें काट दे तो किन्हें काम मिल रही हो किन्हें नहीं मिल रही हो। तो अब मैं इसी एसडी मांगी तो मैंने तो कोई चीज मिलनी नहीं ना। तुम्हारा जैसा बहुत सारा लोग है। If there is any law or scheme in India for which the country deserves the title of Vishwa Guru, it is the Rural Employment Guarantee Act. 125 छोड़िए 25 दिन की भी गारंटी, ये जो नया कानून आया है बीबी ग्राम जी, उसमें अभी नहीं बची है। आप बताइए हमारे गांव में, मेरे गांव में, इन सबके गांव में किस काम की जरूरत है वो गांव के लोगों को ज्यादा पता है, या दिल्ली में बैठ के कुछ लोग ये योजना बनाएंगे ग्राम पंचायत के लिए कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बनाना है। तो ये भी इसमें लिख दिया गया कि एक बॉडी होगी जो ये तय करेगी किस तरीके के काम उसके अंदर होंगे। इस बिल का असली मकसद क्या है? कॉरपोरेट को, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, बड़े बड़े जो पूंजीपति को और बड़े बड़े किसानों को चीप लेबर दिलाना। भारत में कोई भी एक कानून या एक योजना है जिससे भारत को विश्व गुरु को कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि वो है रोजगार गारंटी कानून। If there is any law or scheme in India for which the country deserves the title of Vishwa Guru, it is the Rural Employment Guarantee Act, जो 20 साल पहले पास किया गया था और जो पूरा दुनिया को बहुत प्रेरणा दिया है। अभी तक किसी देश में इस तरह का कानून नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आएगा जब कई देशों में इस तरह का कानून लाया जाएगा। जैसे एनी ने कहा, इस कानून लाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। ये कानून सचमुच मजदूर आंदोलन और जन संघर्ष का फल है। एंड इट इज़ ट्रूली अ लॉ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब इस कानून को रिपील किया जा रहा है। It's not being renamed, not only renamed, and it's certainly not being revamped. It is being repealed. ये मेरा शब्द नहीं है, ये इस नया बिल का शब्द है, Section 37. Under this scheme, the government of India will have full powers. It can decide where and when the scheme comes into force. It can decide the financial allocations. It can decide the wage rate. It can decide everything. It has all the powers. And no obligations. I don't think this bill puts any single obligation, legal obligation, on the central government. All the obligations have been palmed off to the states, including the obligation to ensure adequate financing. The worst part of this discretion is what I call the switch-off clause under Section 4 and 5. The clause which says that the central government will decide where and when this scheme comes into force. This defeats the purpose of employment guarantee. It's like saying, I give you a work guarantee, but I don't guarantee that the guarantee will be in place. This is what this bill is saying. And by the way, 20 years ago, when the original NREGA bill was tabled in Parliament, and you will remember, the government had also tried to include a switch-off clause. And we fought against it for months, tooth and nail, and then it was finally removed. And that is how we had an Employment Guarantee Act with teeth. Now the teeth have been removed because of all this discretion. And the fact that these discretionary powers may be misused is not an imaginary risk. We have seen how these powers are used. We have seen how the central government has discontinued the NREGA even for the last 3 years. In West Bengal, all the states must resist this act tooth and nail. And of course, we are also going to resist. हम लोग इस बिल का विरोध करेंगे। अगर कल परसों पास हो जाएगा तो इसका रिपील के लिए भी हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। परसों से ही on the 19th अलग अलग जगहों में लोग सड़क पे उतरने वाले हैं। दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, वेस्ट बंगाल में भी और कई जगहों में भी। All states, in all the states, from day after tomorrow, 19th December, we are beginning this movement for the repeal of this so-called GRAMG bill or act, and we will continue until the bill is repealed, just as the farmers have struggled in an exemplary and inspiring manner for a whole year
until the farm bills were repealed. Thank you. वर्क साइट फैसिलिटीज एनआरईजी के अंदर आज है, वो तमाम चीज़ जनता की संघर्ष के वजह से जो कानून के तहत भी अंदर भी आ गया है। इसमें मैं बताऊं कि बहुत सारे कंसल्टेशंस हुआ था, चाहे कोई भी इससे रिलेटेड जितना भी मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट हो, हर मंत्रियों से, हर डिपार्टमेंट से, हर सेक्रेटरियों से बातचीत हुआ था। और तमाम जो राज्य की सरकार के साथ हमारा बहुत सारी राज्यों की सरकार के साथ बातचीत हुआ था। और बहुत सारी जो मीटिंग्स, आम पब्लिक का मीटिंग्स, इसको लेके लाइन बाय लाइन, क्लोज बाय क्लोज, जब ये जो आने के बाद उसी की, क्योंकि शुरुआत से लेके कैसे होना चाहिए कानून, मैं महिला फेडरेशन से भी, भारतीय महिला फेडरेशन NFIW से भी हूँ और भारतीय खेत मजदूर यूनियन से भी हूँ, इसलिए मैं महिलाओं को लेकर थोड़ा बताना चाहती हूँ। हम महिला संगठनों ने, NFIW और आइडवा और बाकी तमाम महिला संगठनों ने हमें इंसिस्ट किया, जब एक कानून बना रहे काम करने के लिए, गारंटी, लीगल गारंटी के साथ बना रहे, तो हम महिलाओं को इसमें शामिल होने का, काम करने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा है मेरा 2 साल की, 3 साल की, उसको कौन देखभाल करेगा, तो ये सोचकर ये काम में ना जाना, ये सब पॉसिबल, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है, वी विल हैव टू एंश्योर दैट each and every woman who would like to work under NREGA should get the work and they should be able to participate in that. इसलिए हमने इस कानून के तहत हमने उसमें लगाया था कि वर्क प्लेस में जो बच्चों को परवरिश करने का, देखभाल करने का जो बताया था, जो वर्क साइट फैसिलिटीज, ये पूरी देश की जनता की आंदोलन की वजह से बहुत बड़ा भ्रम एक तरीके से फैलाया जा रहा है गांव से लगा के शहरों तक कि 125 दिन का रोजगार की गारंटी लेके भारत सरकार आ रही है। और मुझे तो लग रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो 125 छोड़िए, 25 दिन की भी गारंटी, ये जो नया कानून आया है बीवी ग्राम जी, उसमें अभी नहीं बची है। सबसे पहली बात, अभी मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी रहते हैं, चाहे यूनियन टेरिटरी है, स्टेट है, जहाँ भी रहते हैं, आप काम मांगने के लिए अपने पंचायत में, अपना जो भी लोकल बॉडी वहाँ बना हुआ है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ इस बिल में अभी उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी कहाँ पे चलाना है। तो पहला तो केंद्र सरकार के डिस्क्रिशनरी पावर हो गया कि कहाँ वो चलाएंगे, कहाँ नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया है कि वो राज्यों को एलोकेशन, आवंटन बेसिस कर देंगे, मतलब आवंटन करेंगे कि कितने, जैसे अभी होता है ना नरेगा में, कितने मानव दिवस परसेंटेज जनरेट हुए, कितने करोड़ परसेंटेज जो जनरेट होते हैं। तो मान लीजिए अभी तो ये है कि कोई भी काम मांगने जाएंगे, डिमांड ड्रिवन है, जो काम मांगने जाएंगे उनको काम मिलेगा, पैसा हो सकता है कि बहुत, क्योंकि कई बार डिले हो रहा है, वो बाद में उनका आएगा। लेकिन अभी उन्होंने तय कर दिया, ये कानून में लिखा है कि वो एक एलोकेशन करेंगे, उस एलोकेशन से ज़्यादा यदि कोई राज्य सरकार करती है तो उसका पूरा 100% खर्चा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। एक बड़ी चीज उन्होंने इसके अधिसूचना से संबंधित ही जुड़ी है, जो सेक्शन 4(4) में है, वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का भी वो बंटवारा 3 कैटेगरी में करेंगे। अब A कैटेगरी भी होगी, B कैटेगरी होगी, C कैटेगरी होगी। A कैटेगरी ऐसी होगी जहां लगभग जरूरत नहीं है नरेगा चलाने की। B कैटेगरी होगी जहां पे कि अनुसूचित जाति, जनजाति या कुछ और अति पिछड़ों को मिला के उनके लिए वो नरेगा चलाएंगे। C कैटेगरी में उस पंचायत में सबको काम मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि ये मतलब कितना हम देखते हैं। 1997 में BPL का सर्वे हुआ, 2002 में BPL का सर्वे हुआ, और BPL का सर्वे आज तक हम एक सर्वे ठीक से नहीं कर पाए। और अभी हम नरेगा के लिए ये जो ABC की कैटेगरी बनाएंगे, इस ABC की कैटेगरी से किसको काम मिलेगा? जो सबसे वंचित है, क्या उसको काम मिल पाएगा उस पंचायत में? तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा एक तरीके से उन्होंने किया है। दूसरा वर्ड प्रभात जी पॉइंटेड आउट कि 60, अभी आपको पता है कि अनस्किल्ड बेज पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, नरेगा में ये प्रोविजन है। लेकिन अभी वो 60-40 का रेशियो लेके आ रहे हैं कि 60% केंद्र देगा और 40% राज्य को खर्च करना पड़ेगा। कुछ हिमालयी राज्य जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उसमें 90 और 10 का एक तरीके से रेशियो होगा।
तो आप आज मान के चलिए कि जो राज्य सरकारें 100% मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, उस स्थिति में कितना मजदूरों को लड़के ये लेना पड़ रहा है, हमारे मजदूर साथी बताएंगे। जब 40% लायबिलिटी उनके ऊपर आ जाएगी तो कितने मजदूरों को वो काम देंगे, कितना ये चलेगा? आप बताइए, हमारे गांव में, मेरे गांव में, इन सबके गांव में किस काम की जरूरत है, वो गांव के लोगों को ज्यादा पता है, या दिल्ली में बैठ के कुछ लोग ये योजना बनाएंगे ग्राम पंचायत के लिए कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बनाना है? तो ये भी इसमें लिख दिया गया है कि एक बॉडी होगी जो ये तय करेगी किस तरीके के काम उसके अंदर होंगे। ब्यावर से आए हैं, ब्यावर जिला से। हम नरेगा में काम करते हैं, 18 साल हो गया और हमके कमाने वाला तो कोई है ही नहीं है, बेटा नहीं है हमके पास, तो हम कैसे जिएंगे? ये नरेगा को बंद कर देंगे तो। मैं पूछ रहा था कि अपने को साल में कितने दिन का काम मिल जाता है नरेगा से? 100 दिन का। 100 दिन का मिल जाता है। तो 100 दिन से अपने को कितनी दिहाड़ी के हिसाब से कितना बना? एक दिन की दिहाड़ी कितनी बन जाती है? एक तो रेट 281 की रेट मिलती है हमको। 281 का रेट मिलता है। और महीने का समझो अपने को कितना, 10 दिन का काम मिल जाता है एक महीना में? 10 दिन का मिल 10 दिन का मिल गया तो अपने को 2,500-3 हजार रुपया महीने का इंतजाम हो गया। घर में और कोई कमाने वाला प्राणी कोई नहीं है? कुछ नहीं है, हमके बेटा भी नहीं है, हमके पति भी नहीं है। पति भी नहीं है, पति गुजर भी नहीं गए। है, हाँ। 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। हम तो नरेगा में जावा पेट भराई करा हो रही। तो घर का काम गुजारा केवल नरेगा के सहारे नरेगा चल रहा से है, चलता रहेगा। और अगर ये चला गया तो घर का आधार निकल जाएगा। हाँ, कैसे चलाएंगे? हमको तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ आप आई, आपने दिल्ली में अपनी आवाज़ रखी, क्योंकि इस देश को ये आवाज़ सुनने की ज़रूरत है कमला बहन, है ना? क्योंकि ये बात कि कितना फ़र्क पड़ता है, कितने इस देश के करोड़ों लोगों पे फ़र्क पड़ा है। जैसे आप हैं वैसे हर साल इस देश के 5 करोड़ लोग हैं जो कि इस स्कीम के सहारे अपना काम करते हैं। नरेगा जिंदाबाद। जिंदाबाद। नहीं, संघर्ष करेंगे, बिल्कुल नरेगा जिंदा रहेगा एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। ए बिल ऑफ दिस सिग्निफिकेंस must not be passed without due deliberation, that it must be referred to the standing committee, due discussion must take place, and one can only hope, because that is the committee which is relevant in this instance. So if the chairman of the standing committee on rural development is asking the parliament to please discuss it, deliberate upon it, send it to a committee, this is the least one should expect. So that letter has been sent today. I just wanted to mention it. I want to highlight 2 aspects of this new changed bill that has been brought in and which in an unprecedented fashion was introduced yesterday and is to be voted on today, which I think is possibly a first even in Indian legislative history. So the first is that this continues a pattern that we have seen now over the last 10-11 years of making everything a gift of the state. The point about these laws, these rights-based legislations, is that they were recognizing the rights of citizens and the responsibilities of the state, of the government. Right to work, right to food, right to education, right to information. These were things that citizens had the right to, the adhikar. What has turned now is a gift to the state. And we are seeing this in every possible way. We are seeing this in our rations, which are the right to food, which are coming with the photograph of the Prime Minister plastered onto the packet as a gift from the Prime Minister. We are seeing this we saw this during the vaccines, when we were the only country in the world where the vaccine certificates had the photograph of the Prime Minister, rather than the photograph of the person who received the vaccine, to identify that they had received the vaccine. We are seeing this tendency to convert what must be citizens' rights and the responsibilities of the state into something that is a gift from the state, a present from a very kindly leader, and that we should be grateful for whatever is given. That's the first major feature of this law. It completely destroys the right and makes it a gift from the state. But the other and possibly equally damaging feature is precisely what you have mentioned and what Professor Patnaik also mentioned and aapne bhi jo zikr kiya hai, that this is actually a deep attack on federalism.
And this has to be in the context of a continuous attack on federalism that we have seen from this government for the last decade and more. ये केंद्रीय सरकार की जो केंद्रीकरण है, the centralization of a whole range of decision making but not responsibility. And we have seen this over and over again. We saw it again during COVID, where the center made the decisions, the state governments were left to deal with this. But we are seeing it now in a very extreme case, because this law was very carefully thought. Because of all the consultation and everything, this law was designed to be developed at the local level. The Gram Panchayats were going to have the list of works. This was going to be discussed in Gram Sabhas. There were supposed to be regular local audits. And this would then be fed up to the state governments, and they would then make the list of the required employment, which they would submit to the center. So it was a bottom-up approach in terms of the decision making. We are now getting a complete reversal. Of course, there's no right-left. Adhikar to kuch raha hi nahi. But what is more important is that the central government will now make all decisions where it is to be done. So it's not going to be done universally across all rural areas. It will be done only where the central government decides what kind of work to be done. The central government will have the list of works, and it will have a shelf of works from which it will decide what to do where. या कमला जी बताया कि मेरे साथ में यह है, तो सही बता रही। इसके 20 साल हस्बैंड मरियाने हो गया, एक बच्ची ही 1 साल की, तो इसका बाद में या 18 साल से नरेगा में काम कर रही। कमाने वाला तो कोई है ही नहीं, लड़की ने तो पढ़ना दी, शादी करवा दी तो सासरे पर ही की, तो अब तो इसका आगे पीछे है भी नहीं। ये कमला जी जैसी बहुत सारी राजस्थान में सब जिले में औरतें है, वैसी है। बार मनी देखो, मैं भी मनरेगा में काम कर रही हूँ, तो 100 दिन का रोजगार के लिए आप अतरा लड़ तो आप 15 दिन का भीतर अपन काम मिल रही हो, 15 दिन तो काम मिल ही नहीं रही हो, तो आप लड़ काम ला रहे, जो भी अपन आसान काम मिल रही हो, तो अब मनरेगा में कोई काम मिलेगा क्या? तो अब इसके लिए यो मैं भी यहाँ को पीछे छोड़ने वाला नहीं। मोदी जी क्या जान रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मैं जहाँ मैं लगाऊं वहीं लाग जाए, मजदूर किसान कटी वहाँ डरने वाला नहीं है। मोदी जी को डर के भागना पड़ेगा यहाँ से। मजदूर की शक्ति ने देखी वे, मजदूर और किसान कितना शक्तिवान है। बच्चा बच्ची ने पाल पोस के बड़ा किया, सक्सेस बनाया आज मनरेगा में काम कर करके। आज 18 साल की हमारी लड़की है कि कॉलेज पढ़ रही, मैं मनरेगा में काम कर पढ़ा रही हूँ। आवेदन पत्र 6 जमा करा रही हूँ, 15 दिन का भीतर मन काम मिल रही हो। अब वो और लाइन ऐसी चीज़ें काट दे तो किन्हें काम मिल रही हो, किन्हें नहीं मिल रही हो। किसी पंचायत में काम काटी, मैं भी शहरी रोजगार में आ गई। हमारे बदनौर का मैंने पहाड़ी इलाकों शहरी रोजगार ही चल रही हो, तो वहाँ को शहरी रोजगार में हमारी तो मनरेगा चलाई कौन, तो 1200 ही आदमी तो घर बैठ जाए ना बेरोजगार यार। वो पहाड़ी इलाका में कई काम है यार। लोग का उठे जार पूछो, ये तो मोदी जी तो यहाँ बैठा बैठा कर दिया कि भविष्यवाणी के जहाँ काम के उसी जगह दिया हूँ। तो अब मैं इसी एसडी में आ गई तो मैंने तो कोई चीज़ मिलनी नहीं ना। तुम्हारा जैसा बहुत सारा लोग है, तो आज पहले भी क्यों इन्हें तो अंद्रावास को मकान दे इके यो बनाओ, अंत्योदय परमट बनाओ। अरे ऐसे ऐसे लोग के तो अंत्योदय परमट बनवाएड़ा, ऐसे ऐसे लोग का अंद्रावास पास की दौड़ा। अरे ऐसे लोग के तो कोई भी नहीं है। कोई अगर अंद्रावास है, कोई यहाँ चेनीज में है, कोई यहाँ कई फायदों को ने बे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला के सब चीज़ें है रही यार। मजदूरा ने घुसपैठिया बता रहा कि ये काम न करे या कि नरेगा बंद करो। ये चीज़ मोदी ने ना सोचना चाहिए कि ये मनरेगा का लिए कौन मजदूर का दर्द है रही और कौन मजदूर का नहीं है रही हो, या तो कोई जानकारी ली कौन है जो भाई वो मजदूर काम करवा लायक है कि न है। सब ने एक ही समान करना, उन्हें मनरेगा ने ख़त्म कर दिया। मनरेगा ने ख़त्म सॉरी करने देने वाला नहीं है हमें। ये जहाँ ताकत लगाओ वहाँ लगा दो, जहाँ लड़ना पड़ेगा, जहाँ बैठना पड़ेगा, 10 दिन लगो, 6 महीना लगो, 12 महीना लगो, तो मैं वहाँ धरना लगाएंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी क्या लीगली कर सकती है वो तमाम चीज़ें करेंगे। मगर हम समझ रहे, हम सभी साथी समझ रहे हैं कि वी आर रियलाइजिंग द फैक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट इन्फॉर्म द पीपल व्हाट इज दिस बिल एक्चुअली। ये कानून क्या है, सिर्फ नाम चेंज किया है या पूरा कानून कदम किया है, एनआरईजे को खत्म कर रही है। तो इसके बारे में जनता के बीच में जाके उनको समझाना बहुत जरूरी है। जैसे इस कानून लाने के लिए प्रयासों के वक्त भी हमने ये किया था,
तो तमाम जो अवेलेबल तरीके हम अपनाएंगी और सरकार से भी मिलेगी। अभी से हम ऑलरेडी वी आर मीटिंग द MPs ऑफ डिफरेंट पार्टीज एंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो वो प्रक्रिया शुरू है और अलग अलग तरीके से, चाहे वो धरना भी हो सकती है, हस्ताक्षर भी करना हो सकती है, पार्लियामेंट के सामने धरना हो सकती है, अलग अलग चीज़ों के, मगर हम रुकेंगे नहीं जब तक ये जन विरोधी, देश विरोधी इस बिल को वापस ना ले, तब तक हम जो लड़ते रहेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।